پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے 300 آپ نے بے شمار تقریباً 300 یا 300 سے زیادہ سوانح عمریاں پڑھی ہیں، تو اس میں آپ کا جو معیار ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ بہت ایک ریزنیبل بات ہے کہ اگر انسان خود لکھ رہا ہے تو وہ حقیقت بیان کر سکتا ہے، اور اگر پھر بھی نہیں کر رہا تو وہ ایک طرح سے مکمل کہانی نہیں ہے. تو آپ کو ان 300 یا 350 سوانح عمریوں میں کتنی سوانح عمریاں ایسے ملیں جن کے بارے میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں نے صحیح طریقے سے یا بہت کچھ اپنے بارے میں سچ کے حوالے سے؟ دراصل بات یہ ہے جو مجھے پوچھ رہی ہیں، یہ بتانا، یہ کہنا کہ 300 350 سوانح عمریوں میں فلاں سوانح عمری جو ہے وہ بہت اچھی ہے یا اس کو میں سب سے اچھا سمجھتا ہوں، بڑے مشکل ہے. کسی ایک سوانح عمری کا نام نہیں، لیکن میں نے کچھ نام تو لیے ہیں جن میں مجھے خامیاں نظر آئی ہیں، اور کچھ نام ایسے بھی ہیں جن میں خوبیاں نظر آئی ہیں. سب سے اچھی سوانح عمری تو مجھے شیخ منظور الہی کی لگی. یہ زہرا منظور الہی کو جو میاں تھے، یہ سول سرونٹ تھے اور ادیب بھی تھے، لیکن ان کے ادیب ہونے کی حیثیت، ان کے سول سرونٹ ہونے کی حیثیت سے بہت آگے گزر گئی. حالانکہ کتاب ان کی صرف ایک چھپی. تو کوئی ایک شخص اگر ایک کتاب لکھ کے بھی اپنا نام اس طرح پیدا کرتا ہے تو اس میں جو خوبی ہے وہ ظاہر ہے پڑھنے والوں کو تو معلوم ہونی چاہیے نا، ہوتی ہے. اس لیے میں تو کہتا ہوں کہ جس کو بھی میسر ہو وہ کم از کم شیخ منظور الہی صاحب کی سوانح عمری جو ہے، خود نویس سوانح عمری جو ہے، اس کو ضرور پڑھنے کی چیز ہے. دوسرا سوال یہی میں پتہ کرنا چاہتی تھی کہ جو ٹرینڈ ہے آپ نے دیکھا، اس میں کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ واقعی لوگ جو ہیں وہ پوری تصویر اپنی پیش کر رہے ہیں جو ان کو نظر آ رہی ہے، یا یہ ٹرینڈ نہیں ہے؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے نصرت کا. زیادہ تر سوانح عمریوں میں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ زیادہ تر سوانح عمریوں میں لوگوں نے اپنے ساتھ انصاف نہیں کیا، اور اس میں بڑے بڑے ہمارے ادیب شامل ہیں. جہاں مثلا وزیر اعلیٰ کا نام آ جاتا ہے، ان کی سوانح عمری پہ جتنے مضمون لکھے گئے ہیں ان کے خلاف 35 کے قریب مضمون ایک سوانح عمری کے خلاف، اسے وزیر اعلیٰ کی سوانح عمری. اور اس میں سب سے بڑی دلیل یہ دی ہے کہ یہ بہت بڑا ذمہ دار ہے، اور اس نے ذمہ دار ہوتے ہوئے اپنے آپ کو بہت بڑا بنانے کی کوشش کی. حالانکہ اس کے سارے سوانح عمری میں کہیں اس کے ذمہ دار ہونے کا ذکر آتا ہی نہیں. تو یہ سوچ کر کہ یہ بہت بڑا لینڈ لارڈ ہے، اس نے یہ لکھا ہوگا، اور بھائی پہلے کتاب پڑھ لو، اس کے بعد جو آپ نے اس پہ تنقید کرنی ہے وہ کریں. تو یہ بھی ایک ٹرینڈ ہمارے یہاں رہا ہے کہ لوگوں کی شخصیت کے بارے میں جو آپ بات سنیں اس کو آپ بغیر پڑھے یا اس سے تصدیق کیے اس کو بیان کریں. یہ میرا اپنا تاثر ہے کہ اکثر سوانح عمریوں میں یہ تاثر جو ہے وہ ان کے بارے میں غلط ہے کہ انہوں نے جو لکھا ہے وہ بالکل صحیح ہے. انہوں نے بالکل صحیح نہیں لکھا، اور اپنے شخصیت کے پہلوؤں کو، بعض پہلوؤں کو چھپانے کی کوشش کی ہے. اور یہ حکم جو ہے وہ ایک دو میں نہیں ہے، بہت سی سوانح عمری میں ہے. اب 300 میں سے ایک حوالہ دینا تو مشکل ہے، کتاب پڑھی جا سکتی ہے، اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا. اچھا، میں ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ
کہ آپ نے ابتدائی گفتگو میں کہا کہ خود نوشت اور سوانح عمری یہ دونوں چیزوں کے درمیان جو ایک باریک سا فرق ہے اس کو لکھنے والے کو ضرور سمجھنا چاہیے. تو جب کوئی شخص اپنے بارے میں سب کچھ لکھنا چاہتا ہے، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ بحیثیت انسان جب کوئی ادیب یا رائٹر یا اہل قلم جب پوری زندگی کا ایک سفر لرننگ کا طے کرتا ہے، ایک خود آگاہی کا سفر طے کرتا ہے، تو بہت سے موڑ آتے ہیں اس کی زندگی میں، بہت سی نیگیٹو چیزیں پازیٹیو ساتھ ساتھ چلتی ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جن لوگوں نے لکھ دیا، اور وہ شاید چند ہی ہوں گے جنہوں نے سارا سچ لکھ دیا، تو اس سے ان کی شخصیت کو نقصان پہنچا یا آپ کے خیال میں فائدہ پہنچا؟ اور غالباً اپنے آپ کو اس نقصان سے بچانے کے لیے لوگ احتیاط برتتے ہیں، کچھ باتیں بتاتے ہیں اور کچھ نہیں، تو وہ پھر ادب سے یعنی ناانصافی ہو جاتی ہے. تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو بات آدمی چھپاتا ہے، ہر زندگی میں آپ اپنے زندگی کے تمام پہلو تو اجاگر نہیں کرتے. کچھ ایسے پہلو بھی ہوتے ہیں، مثلا آپ لباس پہنتے ہیں. اب لباس پہننا اس لیے ہے کہ آپ نے اپنے کو چھپایا ہوا ہے. یہ لباس جو ہے یہ بھی آپ کا ایک ڈریس ہے جس میں آپ جو آپ کو ضروری ہے رکھنا، ورنہ اس کے بغیر ظاہر ہے کہ آپ کبھی بغیر لباس کے تو نہیں نکلیں گے. نہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا. میرا مطلب یہ تھا کہ جو لکھ دیتے ہیں اپنی خامیوں کو، اس سے ان کا کیا امیج بنتا ہے کہ یہ سچے انسان ہیں یا اس سے ان کی شخصیت کو نقصان پہنچتا ہے؟ یہ سوال نہیں، شخصیت کو نقصان نہیں پہنچتا، نہ جیسے پہنچنا اگر ہم چاہیے. یادوں کی بارات پڑھتے ہیں تو بہت سے مقامات پہ ہم ٹٹکتے ہیں کہ یہ کیا لکھا ہے انہوں نے اور کیوں لکھا ہے نا، لیکن ان کا تو وہی سچ تھا، انہوں نے لکھ دیا. اور بہت سارے لوگ وہ سچ نہیں لکھتے اور وہ چھپا جاتے ہیں. تو اس سے اس سوانح عمری کی یا اس خود نوشت کی کیا حیثیت ادبی متعین ہوتی ہے؟ یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں. میرا اپنا خیال ہے، یادوں کی بارات کا آپ نے ذکر کر دیا ہے. یادوں کی بارات میں بہت سے اعتراضات ہوئے ہیں، خاص طور پہ ان کے آخری باب پہ، کہ جہاں انہوں نے اپنے معاشقے بیان کیے، اور معاشقے لڑکوں سے بھی ہیں، معاشقے لڑکیوں سے بھی ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے کوئی چیز چھپائی نہیں ہے بغیر بات کے، تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے، اعتراض والی بات کوئی نہیں ہے. لیکن ہمارے حلقوں میں، ادب کے حلقوں میں، خاص طور پہ اسلامی حلقوں میں تو بہت اس پہ لے دے ہوئی تھی کہ یہ انہوں نے کیا کیا، حالانکہ کوئی ایسی غلط بات نہیں کی تھی انہوں نے زندگی کی، اور ایسی کوئی ایسی فوش بات بھی انہوں نے کوئی نہیں لکھی، اس میں فحاشی کوئی نہیں تھی. لیکن اس بات کو فوج سمجھا کہ جنہوں نے نام لے دیے لڑکے، بھائی نام لینے میں کیا حد ہے، نام کے بھی تو مخففات بیان کیے ہیں انہوں نے. بلکہ میں تو ان کے ایک معشوق کو جانتا بھی ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، سبط حسن کو کون نہیں جانتا. سین ہے کہ نام سے جو ہے وہ سبط حسن صاحب ہیں، اور سبط حسن صاحب ہمارے زمانے تک زندہ تھے. تو یہ سلسلے تو چلتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ تو میر کی شاعری میں بھی آپ کو مطلب یہ کہ میرے خیال میں اگر جیسے آپ زور دینی شاید یہ کہ شخصیت پہ جو اثر کیا ہے تو وہ غالباً اس کا تعلق پرسپیکٹو سے بھی ہوتا ہے کہ ہم ہماری نظر میں تو شخصیت خراب ہوئی ہو سکتا ہے دوسرے آدمی نظر میں. اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں غالباً کہ پہلو دونوں ہیں معاشرے میں ہمارے کوئی مثبت انداز میں لیتا ہے. نہیں، بات تو جو انہوں نے کی ہے بالکل ٹھیک بات ہے. جی ارشاد. میں اصل میں مائک ڈاکٹر صاحب کا آواز اتنی ہاں ٹھیک ہے. مجھے 1 منٹ دیں گے جی. میں یہ کروں گا کہ ابھی سوال کے لیے لوگوں کو اصل مائک روٹیٹ کرتے رہیں گے ہم لوگ. کوئی اگر سوال کرنا چاہیں اور چاہے لکھ کے دینا چاہیں تو میرے پاس پین پینسل کاغذ ہے، کہیے گا میں دے دوں گا. تو ایک سیکنڈ بھائی، ڈاکٹر صاحب نے پہلے ہاتھ اٹھایا تھا اس لیے میں آپ سب کے نام لکھتے جا رہا ہوں. ترتیب سے چل رہا ہے. میرا نام لکھیے. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آٹو بایوگرافی کے موضوع پہ یہ ان اے وے پہلا لیکچر ہے جو میں سن رہا ہوں. ادھر ادھر سے چیزیں بڑی بھی تو ہیں لیکن لیکچر کی شکل میں پہلی. اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ پروفیسروں کو ڈھونڈنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اتفاق سے آپ ہاتھ آ گئے ہیں تو پھر پڑھتے ہوتے ہیں. تو اس لیے جو بھی میرے ذہن میں بہت سے سوال ہیں تو
میں یوں کرتا ہوں کہ ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ میرا کام آسان ہو جائے اور آپ اس کو جیسے آپ کا مشکل تو میرے ذہن میں جو ہے نا ایک کمپیریٹیو سینس ہے جو کہ ویسٹ کے اندر آٹو بایوگرافی کا ایک ٹرینڈ ہے اور اردو میں جس کے آپ ماہر ہیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمیں بتائیے ایولیوشنری سینس میں کہ اردو کے اندر ایولیوشنری سینس میں آٹو بایوگرافی جو کہ پہلی سب سے کہیں لکھی گئی اور اس کے بعد وہ جو ہے نا وہ ٹرینڈ جیسے نصرت نے بات کی تھی کہ وہ ٹرینڈ جو ہے کس طرح شفٹ ہوا. اور خاص طور سے یہ بات کہ میرے بیک گراؤنڈ آف دا مائنڈ میں ایک کتاب ہے انڈینائزیشن آف آٹو بایوگرافی کہ جس میں خاص طور پہ وہ لا کے تو گاندھی پہ کھڑا کر دیتے ہیں کہ انڈیا کے اندر پہلی آٹو بایوگرافی گاندھی کی ہے اور اس کا کمپیریزن جو سینٹ آگسٹین کی جو وہ آٹو بایو ہے اور اس کا جو ایک ڈائگنلی اپوزٹ کہہ لیں روسو کی جو کنفیشنز ہے کتاب کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ جو سینٹ ہیں ہمارے ہاں جی مسیحی ٹریڈیشن کے کہ وہ کہ جس طرح سے اپنے آپ کو وہ خدا کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ انہوں نے سارا اس طرح سے لکھ دیا اپنا نامہ اعمال. اور اس کے مقابلے میں روسو جو ہیں وہ سوشل کانٹیکسٹ کے اندر اپنے آپ کو وہ یوں سمجھ لیں کچھ تھوڑا سا یا بچا بھی رہے ہیں لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس میں ایک گلوریفیکیشن کی سینس بھی موجود ہے. تو یہ جو آپ نے بات کی تھی کہ بالکل جو ہے نا وہ سیدھا بالکل جو بھی ایمانداری کے ساتھ لکھیں تو وہ گلوریفیکیشن سے بچ کے اور صحیح طرح سے لیکن ہیگیلین سینس کے اندر جب بھی کوئی آدمی لکھتا ہے کیونکہ آٹو بایوگرافی ہے تو تاریخ ہی تو تاریخ میں یہ کہ جو ایک فیکٹس کی تاریخ ہے اور اس کا جو ریفلیکٹیو کانٹینٹ جو کہ سیکنڈ سٹیج آف ہسٹری ہے آٹو بایوگرافی کے اندر وہ ریفلیکٹیو سٹیج جو ہے اردو میں کس طرح سے ڈیولپ ہوئی ہے تو اس کے بارے میں آپ ذرا. آپ نے روسو کا نام لے دیا ہے. روسو کے جو اعترافات ہیں کنفیشن اس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں اس میں یہ کوئی چھپائی نہیں ہے بات. اسی وجہ سے روسو کی جو خود نویس اسوان عمری ہے اس کو ہمارے اسوان عمریوں کے فن میں بنیادی حیثیت دی جاتی ہے. اس نے دو باتوں کا خیال رکھا ہے. پہلی بات اس نے یہ کی ہے کہ جو کچھ اس نے محسوس کیا ہے اس نے اس کو چھپایا نہیں, اپنے جذبات کو چھپانے کی کوشش نہیں کی اور نہ اس نے اپنے حالات کو چھپانے کی کوشش کی. تو دونوں چیزوں کو جذبات کو اور حالات کو اگر نہ چھپایا جائے تو جو صورت پیدا ہوتی ہے وہ روسو کے اعترافات ہیں کنفیشنز. تو کنفیشنز اس لحاظ سے بڑی مستند سوانح عمری ہے اور وہی بنیاد بنتی ہے ہمارے خود نویس سوانح عمریوں کی. اسی کو دیکھ کے ہمارے ہاں سب سے پہلے جو خود سوانح عمری شائع ہوئی تھی اتفاق سے میرا خیال ہے میں نے اس میں شاید ذکر بھی کیا ہے دیباچے میں. وہ میں نہیں اس میں نہیں ہے, میرا خیال ہے مضمون میں تھا وہ اس میں سے شاید ایڈٹ کر دیا میں نے کتاب چھاپتے ہوئے. میں نے اس میں یہ بیان کیا تھا کہ روسو کا ذکر کرتے ہوئے کہ روسو نے جو اصول ہمارے لیے خود نویس سوانح عمریوں کے لیے مقرر کر دیے ہیں وہ کیا ہیں. ایک بات اس میں یہ تھی کہ جب آپ اپنے جذبات کو بیان کر رہے ہوں تو جذباتی نہ ہو. یہ بہت ضروری بات ہے کہ آپ اپنے تنفر کا اظہار, نفرت کا اظہار یا اپنی محبت کا اظہار ایک دائرے میں رہ کر کریں, اس دائرے سے باہر نہ جائیں. ہمارے ہاں اکثر لوگ اپنے خود نویس سوانح عمری لکھتے ہوئے ان دائروں میں نہیں رہے اور اس میں بڑے بڑے ہمارے لکھنے والے شامل ہیں جن کا میں نام اس وقت ایسے نہیں لے سکتا, نہ لینا چاہیے. یہ خود آپ کو پڑھنے والوں کو اس میں
जोश मिली जी, आबादी रुबिना। इसी कैटेगरी में आते हैं? जी मैंने कहा फिर ये इसी कैटेगरी में आएंगे, जोश मिली आबादी भी, जिन्होंने जज्बात का ख्याल नहीं रखा, बैलेंस नहीं रखा जज्बात का। नहीं, जोश साहब ने तो जो बात लिखी है वो सही समझ के लिखी है। उन्होंने कोई वो जैसे ने कहा कि उसमें कोई फहाशी नहीं है, हालांकि इल्जाम फहाशी का है। तो हम तो इस बात को ही फहाशी कह देते हैं कि जो लड़के से इश्क कर रहा है, ये कौन सी फहाशी है। लेकिन वो तो ये सिलसिला तो जोश साहब के साथ चला है। ये मैं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग रिलीजियस मॉरल वैल्यूज जो हैं जी उनके हवाले से अदब को जांचने लग जाते हैं। हाँ जी उस वजह से ये वाली बात पैदा होती है कि ये फहाशी है या ये फहाशी नहीं, उसको ऑब्जेक्टिवली नहीं देख पाते। हाँ, ये तो क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिवली आप उसे देखें सिर्फ अदब ताना समझ के तो वो फहाशी नजर नहीं आएगी। रहती है। लेकिन अगर आप उस मॉरल वैल्यू के हवाले से देखना शुरू कर दें तो कुफ्र और फहाशी और ये सारी चीजें इल्जामात उस वक्त लगेंगे। हाँ, जब आपने मॉरल वैल्यू का है ना, ये मॉरल वैल्यू नहीं है ना, ये हमारे बनाए हुए अपने नहीं, रियलिटी तो सोसाइटी की बनी हुई चीज है ना, हाँ, और डिफरेंट भी है हर सोसाइटी में। मेरा भी मुस्लिम सोसाइटी में आपसे कह नहीं कर सकती। क्या कह रहे हो? जी रुबिना। नहीं वो उनका सवाल ले लेते, मैं अपना सवाल। असल में मैं ये सवाल करूंगा और आप कहें कि बिल्कुल ही मैंने जो है जी कोई मेरी जो है वो इस मामले में कोई आप फिक्र न करें। आप खुद भी करें। पढ़ाई नहीं है कोई सवाल छोटा बड़ा नहीं मेरा होगा। एक्सपीरियंस नहीं है, जी। लेकिन जो चीज़ मुझे समझ में आती है एज आम इंसान के तौर पे मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ। दो सवाल है मेरे। पहला सवाल ये है कि जब किसी शख्स के बारे में कहा जाता है कि उसने अपनी सवानें लिखी है, तो हम उसके रुतबे के एतबार से, उसके एक्सपीरियंस के एतबार से, जिस जगह उसने सेंसिटिव एरियाज में काम किया है, हमारी एक एक्सपेक्टेशन बन जाती है कि वहाँ से कुछ ऐसी बातें हमें पता चलेंगी जो आमतौर पे नहीं बताई गई हैं। और उसमें अगर वो किसी गवर्नमेंट के लिए काम करता था, आला ओहदे के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो सेंसिटिव नोयत की होती हैं, वो कि उसकी ज़ात का हिस्सा होती है, उसे मालूम होता है। फिर भी ये इस खदशे के तौर पे कि इसकी वजह से कोई राज अफशा ना हो जाए या इसकी वजह से कोई और हंगामा ना पैदा हो जाए, हो सकता है कि वो तमाम चीज़ों को बयान ना कर पाएँ। बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी ज़ात के बारे में लिखते हैं या माशरे के बारे में लिखते हैं, लेकिन उनको ये पता होता है कि अगर मेरी ज़िंदगी में ये सवालात पूछ लिए गए तो हो सकता है कि इसका बहुत बड़ा फितना पैदा हो जाए और मेरी अपनी ज़िंदगी को, मेरे चाहने वालों को, मेरे घर वालों को मुश्किल का सामना पड़े। और वही कहते हैं कि मेरे मरने के बाद इसको जो है शाया किया जाए। तो क्या ऐसा करना उन लोगों के लिए दुरुस्त है? क्योंकि ये मामलात ऐसे हैं कि जिसकी वजह से वो पूरा सच नहीं बोल सकते। एक चीज़। दूसरी चीज़ मुझे आपके काम के हवाले से सवाल है कि जब आप तनकीद करते हैं, आप पढ़ते हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि ये चीज़ ये सच नहीं बोल रहा या इसने जो है ऐसा नहीं किया था, तो बहैसियत तनकीद करने वाले की हैसियत से आप किस हद तक जाते हैं? क्या उसको आप घर तक छोड़ के आएंगे कि ये चीज़ ने यूं नहीं कही क्योंकि अगर ये ऐसा होता तो उसकी वजह से ये होता, और मेरा ख्याल ये है कि ये सही नहीं कहा है, जबकि आपको नहीं मालूम, सिर्फ उसको मालूम है और अल्लाह को मालूम है कि हकीकत क्या है। तो वहाँ पे आप कहाँ पे रुक जाते हैं और कहते हैं कि ये चीज़ ऐसी होना करीन क़यास नहीं है लेकिन वो लाल जी। मैं दोहरा देता हूँ। दूसरा सवाल ये था कि तनकीद जब आप करते हैं किसी पर, तो उसकी क्या कोई हदूद है, कोई कि जहाँ पे आप कहेंगे कि इससे ज़्यादा मज़ीद जितना हमें बात करने की कर चुके, या उसको अगर आप किसी को गलत साबित कर रहे हैं तो आप उसके पीछे ज़्यादा जाएंगे, यानी तनकीद की हदूद क्या होगी? झूठे को कहाँ तक पहुँचा देते हैं?
नहीं, मैं पहले असल आप में अंदाज जो बात आपने की है वो तो बिल्कुल वाज़ेह बात है, उसमें कोई तनकीद वाली बात तो है कोई नहीं। जी मेरा ख्याल है आप शायद आप तनकीद आम तनकीद से बजाय शायद आपका सवाल ये है कि कहीं अगर ये किसी सवाल गलत बात तो है ही नहीं, वो तो बिल्कुल अब आपने राय है। बात बयान फरमाई है, बस ठीक है, उसमें तो किसी को कोई इख्तलाफ करने की गुंजाइश तो है ही कोई नहीं है उसमें। अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैं जब इस ओहदे पे था तो मुझे फलाने ने रिश्वत देने की कोशिश की थी कि मुझे इतने पैसे आप ले लो और जो है आप इस काम को से बाज आ जाओ या ये ऐसा न करो, अब इसकी कोई तहकीक नहीं है। अच्छा मैं समझ गया आपका सवाल। अब आप अगर उसकी बहसियत तनकीद निकाल वो उसको ये ले लें कि इस शख्स को ऐसा इसका ये कहना झूठ है या करीब प्रयास नहीं है। किस बुनियाद पर सच होगी? नहीं, नहीं, असल में ये कहना ही चाह रहे हैं जी। वो कहना क्या मेरा मतलब ये मैं समझ रही हूँ कि वो कह रहे हैं कि जैसे आप बहैसियत तनकीद निगार या बहैसियत दानिश्वर जब किसी पर काम कर रहे होते हैं तो आप ये कैसे अंदाजा लगाते हैं कि ये झूठ बोल रहा है, यहाँ पर इस शख्स ने यहाँ पे झूठ बोला है, ये अंदाजा आप कैसे लगाते हैं? ये उसकी किताब पढ़ने से अंदाजा होता है ना जी, यही वो जब पूछना चाह रहे हैं कि और देखें, अगर आप किसी के बारे में पढ़ रहे हैं और उसने अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ हक़ाइक़ बयान किए हैं, कुछ बयान नहीं किए, तो कुछ ऐसे हक़ाइक़ होते हैं जो बता देते हैं कि बयान उसने बयान नहीं की, ये बयान करनी चाहिए थी और वो उसे नज़रअंदाज कर गया है। तो ये तो पढ़ने से अंदाज़ा होता है, ये उसलूब की बात होती है, तो फिर आप जिसके उसलूब में ये तवाज़न हो, वो उसकी ज़बान उम्री ज़्यादा अच्छी साबित होती है और पढ़ने में भी दिलचस्प होती है। प्रोफेसर साहब कोई मिसाल देंगे ताकि बात ज़्यादा समझ में आ जाए, कोई अगर इजीली अवेलेबल हो? देने के लिए तो किसी एक ज़बान उम्री की मिसाल देना सवाल है कि अगर आपने भी पढ़ी हो फिर तो ठीक है ना। अगर मैं इसमें से मिसाल दूं और आपने वो ना पढ़ी हो तो आपके लिए बेकार है मिसाल। जो ज़्यादा ज़बान उम्रियाँ मशहूर हुई हैं या बदनाम हुई हैं वही जौहर साहब की है ज़्यादा, तो जौहर साहब की मिसाल दी जा सकती है, उसमें उनकी जो सवाल है वो भी आ जाता है, जो मैं बात कह रहा हूँ वो भी आ जाती है। तो सवाल तो उस ज़बान उम्री का है जो आपने पढ़ी हुई है, या तो आप कहें कि मैंने फलां ज़बान आप नाम लें, और अगर मैंने पढ़ी हो, मैंने जिक्र किया हो तो मैं उसके बारे में अर्ज़ कर सकता हूँ, वरना तो मुश्किल है ना कर। जी मेरा सवाल ये है कि आप मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की इंडिया मीन्स फ्रीडम को या शहाब साहब की शहाबनामे को किस कैटेगरी में लाएंगे? यानी शहाबनामा जो लिखा है शहाब साहब ने, जी जी, हाँ, उसको आप सही अच्छी खुद नविश्त कहेंगे, ईमानदाराना कहेंगे या गलत कहेंगे, उसमें मुबालगा या झूठ शामिल है? इसी तरह अबुल कलाम आज़ाद ने इंडिया मीन्स फ्रीडम लिखा है और जो उन्होंने वसीयत ये की कि उसकी दूसरी जिल्द जब आएगी, हुमायूं कबीर से वसीयत करके गए वो कि ये तुम छापना मेरे मरने के बाद, तो जिसकी तरफ वो भी इशारा कर रहे थे सिकंदर की, कि बहुत से लोगों ने ऐसी ज़बानें भी लिखी है जो वो बावजूद अपनी ज़िंदगी में जिसको शायर न करा सके और वसीयत करके गए कि मेरे इंतकाल के बाद भाई इसे 10 साल के बाद या 5 साल के बाद तुम शाया करो, जैसे हुमायूं कबीर को उन्होंने वसीयत की। वो तो छप गए ना फिर। जी जी छप गई। तो इन सवाल को आप किस कैटेगरी में लाएंगे? ज़बान उम्रियों में, बल्कि खुदनवीस ज़बान उम्रियों में सबसे ज़्यादा जो ज़बान उम्री काबिल एतराज़ है वो शाहनामा है। That is right. और बहुत सी बातें ऐसी हैं जो पढ़ते हुए आदमी को एहसास होता है कि ये अपनी शख्सियत को बढ़ा कर चढ़ा कर पेश कर रहे हैं या ये सही बात बयान नहीं कर रहे। तो ये तो शाहनामा तो एक ऐसी मिसाल है जिसको कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। मुझे ये ख्याल आया था साहब से मिलके, क्योंकि इनकी ज़बान उम्री का कुछ हिस्सा मैंने इनकी ज़बान से इस्लामाबाद में सुना, तो मैंने कहा कि किबला इस पे आप मेरा मजमून देख चुके हैं अपनी ज़बान उम्री पे,
कह रहे हाँ देख चुका हूँ इसलिए मैं ये मजमून पढ़ रहा हूँ। यानी उसमें से वो कोशिश कर रहे थे कि जो एतराज़ात हुए हैं वो उनका जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जवाब में भी बात वही आ गई। वो एक सिविल सर्वेंट थे और सिविल सर्वेंट की जो उनके जो क्या तरबियत होती है वो एक ख़ास नहज पे चलते हैं, वो बात करना भी चाहें तो नहीं कह सकते। तो ये सिलसिला तो चलता है। शहाबनामे के बारे में तो ये बात हर एक को मालूम है। हाँ जी, एक तो मैंने ये शहाबनामे के लिए पूछना था, वो आपने बता दिया, लेकिन बात ये है कि वो इतना मकबूल है कि हम जब स्टूडेंट थे तो हम समझते थे जो इन्होंने लिखा है सच लिखा है जी, जो लिखा है सच लिखा है, जो तजुर्बात लिखे जो तजुर्बात लिखे स्टूडेंट लाइफ में जब हम थे। और आज तक पाकिस्तान में आप इस चीज़ को कह नहीं सकते कि उन्होंने गलत लिखा है, उसको बाकायदा एक हॉली बुक का दर्जा हासिल है, क्योंकि पीछे उन्होंने वजीफे लिखे, फिर दरमियान में उन्होंने एक 90 का लिखा हुआ है, उस पर आज तक कभी किसी ने बात नहीं की कि ये गलत है या सही है। अपने तौर पे आज हम बैठे हैं तो हम पूछ रहे हैं आपसे कि ये बात सही है या गलत है, लेकिन एक यकीन है लोगों को उन पे। और एक तो ये बात ये मैंने करनी थी कि आप ज़्यादाताराना पर्सपेक्टिव में इसको कहाँ रखते हैं, तो वो आपने बता दिया कि आप इसको ज़्यादा मुबालगा अमेज़ी समझते हैं। एक और जैसे अलीपुर का एली लिखी मुमताज़ मुफ्ती ने, उन्होंने पहले कहा कि ये नहीं है, ये मेरी आप बीती नहीं है, ये फिक्शन है। उसके बाद जब वो बहुत पॉपुलर हो गई, उनमें ये आ गया, जुर्रत आ गई, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये मेरी आप बीती है, उन्होंने माना। ऐसी आप बीतियों को आप कहाँ पे रखते हैं? और दूसरी बात ये है कि जैसे एक ये तो उन्होंने अपनी ज़ात को लेके लिखी थी ना, और उन्होंने फिक्शन की सूरत उसको दी, लेकिन एक मैं पिछले दिनों पढ़ रही थी सारा शगुफ्ता पे लिखी हुई है, एक जर्नलिस्ट में राना ज़हीर या कुछ उनका नाम है, अज़हर अब्बास के जो शोहर हैं, तो उन्होंने सारे वाक़यात सच्चे हैं, उनकी शायरी भी सच्ची है, हर वाक़यात सब पता है हमें कि ये हुए हैं, लेकिन उन्होंने नाम सिर्फ तब्दील कर दिए हैं। तो ये चीज़ें जो हैं इनको हम कहाँ पे रखें? हिदायतदाराना नज़र से देखेंगे या फिक्शन में रखेंगे कि ये आप बीती है या क्या है? तो अगर जैसे मरने के बाद भी अगर मैं अपने बारे में लिखना चाहूँ तो मैं फेक नाम से लिख सकती हूँ, और मैं ये भी नहीं मुझे कहना पड़ेगा कि मेरे मरने के बाद शाया कर दी जाए। तो ये नहीं, हमारे यहाँ ऐसी स्वानियों मौजूद हैं जो उन्होंने लोगों ने लिखी हैं, और ये कह के लिखी हैं कि हम इनमें से बात ऐसी बातें हैं जो हमारे मरने के बाद उनको छापा जाए, लेकिन उनकी ज़िंदगी में ही छप गई। वो शहाब साहब की जो उन्होंने लिखा था वो सारे का सारा उनकी ज़िंदगी में छप गया है और सब में आगे। स्वान उमरी लिखने वाला जो है वो कुछ छुपा नहीं सकता है, वो चीज़ें ज़ाहिर हो जाती हैं, क्राइम से ज़ाहिर हो जाती हैं। लेकिन अपनी ज़ात को तो हमेशा कोई किसी आर्मी वाले की हम पढ़ लें, किसी सिविल सर्वेंट की पढ़ लें, तो वो सिर्फ अपनी ज़ात को डिफेंड करने के लिए लिखते होते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि ऐसी सवाल उम्र पढ़नी भी चाहिए, नहीं पढ़नी तो चाहिए, लेकिन लिखने वाला सिर्फ अपनी ज़ात को डिफेंड करने के लिए। लेकिन अगर मुबालगा से काम लिया जा रहा है तो फिर लिख क्यों रहे हैं? मतलब या तो फिर सच लिखें, बायोग्राफी लिखें, अपनी सवाने उम्र लिखें तो सच्चाई के साथ लिखें। फिर लिखने की जरूरत क्यों पेश आती है लोगों को जब वो उसमें मुबालगा से काम ले रहे हैं? पूछना चाहिए। एक सवाल का एक हिस्सा ये था कि उसको लोगों ने फिक्शन के तौर पे लिखा, बाद में उसको सामान्य उम्री मान लिया या नहीं माना, तो हम उसे सामान्य उम्री मानेंगे या नहीं मानेंगे? ये फिक्शन मानेंगे? नहीं, अलीपुर का एली जो है वो उन्होंने कहा है कि मैं मरने के बाद छपेगी, लेकिन छप गई उनकी जिंदगी में, और कहा भी कि ये मेरी स्वाने उम्र। जब उसके सेकंड या थर्ड एडिशन आए तो उन्होंने तब उस पे माना कि ये मेरी आप बीती है, पहले वो मानते ही नहीं थे। ना मानने की वजह ये थी कि वो समझते थे कि फिक्शन के नाम के साथ अगर हम लिखते हैं, जैसे ये डॉक्टर साहब सोच रहे हैं कि नहीं, फिक्शन के नाम पे बहुत सी, देखो बिना फिक्शन के नाम पे एक नहीं 50 सवाल उम्रें ऐसी हैं जो फिक्शन के नाम पे लिखी गई।
खुद नबी सवाने उमरिया है, लेकिन उन्होंने उसलूब वो इख्तियार किया है जैसे फिक्शन का होगा। अगर इसमें कोई हर्ज तो कोई नहीं है, जैसे जो आप इख्तियार करना चाहें उसलूब आप इख्तियार करें। ये सर इसमें एक सवाल कि अगर ऐसा ऐसी कोई चीज़ है जो फिक्शनी तौर पे लिखी गई है सवाने उम्री, लेकिन उसमें नाम बदल दिया गया, हम उसको अदब में सवाने उम्री के तहत मानेंगे या हम उसको कोई नया नाम देंगे? नहीं, नया नाम तो नहीं देंगे ऐसे। सवाने उम्री तो सवाने उम्री रहेगी। पढ़ते हैं ना पहले चीज को, जैसे ये जो मैं सारा शगुफ्ता की बात बता रही हूँ आपको, ये अब जिल्लतों के मारे हुए लोग इसका नाम है और ये एक नॉवल की हैसियत से बिक रही है, लेकिन जब मैंने पढ़ी और मैंने रिलेट किया तो मुझे साफ साफ पता चला कि ये तो उस बेचारी बंदी के बारे में नहीं, लेकिन वो ऑटोबायोग्राफी तो नहीं, उसने अपने बारे में जग भी थी। वो कह रहे हैं ना कि एक लोग आपके बारे में आप लिखते हैं जो दूसरे एक लोग खुद लिखते लिखते हैं। हैं, तो वो किसी ने उनके बारे में लिखा, जैसे कोई किसी के बारे में किसी के बारे में वो तीसरे आदमी का उसलूब इख्तियार करते हैं, थर्ड पर्सन नरेशन, उसमें हर्ष तो कोई नहीं है। सर मैं आपने उसलूब की बात की तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि सवाने उम्री एज ए फन के हवाले से उसके कोई ख़ास उसके पैरामीटर से कि किस तहरीर को आप सवाने उम्री कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे, तो उसके मतलब असलूब है क्या सवाने उम्री का? इसके साथ ये एक सवाल मैं भी इकट्ठा कर दूं कि डायरी, क्रॉनिकल और मेटा स्ट्रक्चर ऑटोबायोग्राफी, इनका फर्क भी आप यहीं पे वाज़ेह कर दीजिए। यही खड़े खड़े यही पे जाने से पहले ये बहुत सवाल है, इतना आसान सवाल नहीं है। दरअसल बात यह है कि जब आदमी अपने जिंदगी के हालात बयान करता है तो उसके सामने 2-3 मकासद हो सकते हैं, या तो अपनी खूबियों को उजागर करना है या अपने खिलाफ जो इल्ज़ामात हैं उनका जवाब देना है, या अपने हालात को ऐसे पर्सपेक्टिव में बयान करना है, ऐसे पस मंज़र में बयान करना है कि जिनके उनकी पढ़ने वालों को उनके बारे में कोई गलत फहमी रह रहे। तो ये तो लिखने वाले का अपना उसलूब है जो वो इख्तियार करना चाहता है, डायरी की सूरत में करे या सवाने उम्री की सूरत में करे या खुद नबी सवाने उम्री की सूरत में करे। ये तीनों उसलूब हैं जो अपने आप को अपने इजहार के लिए, अपनी ज़ात के इजहार के लिए। डॉक्टर साहब क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंसान कंट्रोवर्शियल गुफ्तगू जान के, मतलब उसमें जान के ऐसा लिखे पॉपुलैरिटी के लिए, लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जह करने के लिए बहुत सारी ऐसी बातें लिखते हैं, या किसी भी टॉपिक पे कुछ अगर लिखना चाहे वो बोल रहे हैं अपने लिए, लेकिन अगर उसके अंदर वो कंट्रोवर्शियल सी गुफ्तगू कर दे कि लोग अट्रैक्ट हों और पढ़ें, तो क्या वो भी एक तरह से मुबालगे हैं? वो तो उसलूब में शामिल हो गया ना, किसी ने मुबालगे से काम लिया, किसी ने सच्चाई से काम लिया, तो वो तो जब उसका तज़किया किया जाएगा। मैं समझती हूँ डॉक्टर साहब एक सवाल में बुनियादी मेरे जहन में अभी आया है, आज 8 मार्च है और विमेंस डे है, तो क्या आपने 300 सवाने उम्रियों में किसी खातून की कोई खुदनवेश के सवाने पे भी कोई बात की है? हाँ, ये मैं पूछना चाह रही थी कि आपने किन सवाने उम्रियों को काबिल ज़िक्र समझा और किनको डिस्कस किया? अब मैं आपसे बात कहीं अब ये मेरे सामने जो सवाने उम्रियों की फहरिस्त है 350 में खवातीन शामिल है ना? कितनी बहुत सी खवातीन हैं इनमें। हाँ, ये सवाल तो बनता है ना, ये सवाल तो बनता है कि डिस्क्रिमिनेशन की गई है कि नहीं की गई? देखिए, सबसे अच्छी सवाने उम्री जो मेरे ख्याल में खवातीन की सवाने उम्री में से है वो है जो रही सो बेखबरी रही। हाँ जी, ये आदा जाफरी, उस पर मैंने काम किया इसलिए मैं पूछ रही हूँ। हाँ, ये आदा जाफरी की सवाने उम्री भी बहुत अच्छी है। फिर किशोर नाहिद की है बुरी औरत की कथा, फिर आगे बेशुमार
और ख़वातीन के नाम आ रहे हैं। हमीदा सालिम की है शोरिश दौरा, ये एक लिहाज से हमीदा शोरिश की हमें शोरिश दौरा जो है हमीदा सालिम ये मजाज की बहन थी, तो ज़्यादातर हालात इसमें मजाज के हैं, लेकिन माना सुहानी तो उनकी बहन की है। मैं आपसे ये सवाल करना चाहती थी कि जिन सवाल उंगलियों से एक माशरती अदम तवाज़ुन पैदा होता है, कुछ इंकशाफात होते हैं और उसके बाद लोग उसको डिफेंड करते हैं और उसका इनकार करते हैं, तो उससे उस आपबीती पर क्या असर पड़ता है? क्या वो उसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो मशकूक करार दी जाती है या फिर उस पे लोग मजीद काम करते हैं, ज़्यादा बिकती है, क्या असर होता है? रेटिंग बढ़ती है। अब इसका जवाब तो मेरा ख्याल है आपने खुद ही दे दिया है। ये तो जब आप अपने सवाल उम्री बयान करते हैं, अब आप अपने हालात बयान करते हैं, तो आपने अपने एक ख़ास नुक्ता नज़र से बयान किए हैं ना, और किसी मकसद से किए हैं। वो तो पढ़ने वाला जो है इसके सवाल उम्री पे कोई असर नहीं। लेकिन उस सवाल उम्री से दूसरे लोग भी तो ताल्लुक रखते हैं ना, वो ताल्लुक जो होता है वो फिर दूसरे लोगों की जात को मजरूह करता है, फिर उस पे तो उसमें तो असर यही है कि अगर आप ये चाहते हैं कि कहना मुश्किल है कि दूसरों में क्या। इसी परवेज साहब, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो ये कर रही हैं उसी में थोड़ा सा मैं एक बात बढ़ाता हूँ कि मतलब कोई तो जब आपने 300 साढ़े 300 सवाने उम्री की मतलब ज़ाहिर है कि पढ़ा है, तो कहीं ऐसा वो मिलता है आपको कि हम किस तरह से इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं कि आप अपनी सवाने उम्री भी लिखें, लेकिन उसमें ऐसे किरदार जिनके बारे में सच लिखने से हो सकता है आपको असर ना पड़े लेकिन उन लोगों को पड़े, तो उसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है या किस तरह से उसको कंपनसेट कर सकते हैं हम कि चीज़ कंट्रोवर्शियल ना हो? ये जवाब लिखने वाला दे सकता है, करने वाला कैसे जवाब? नहीं, जब आपने इतनी पढ़ी तो कोई आपको ऐसा नज़र आया उसमें कि कोई किसी ने इस तरह का काम किया हो, कोई एग्जाम्पल दी जा सके कि हाँ जी बिल्कुल फलाने साहब ने लिखी है और उन्होंने जिक्र भी किया है और उसको इस तरह से अवॉइड भी किया है? अगर मैं थोड़ा समेट लूँ सवाल को, तो वो कहना चाह रहे हैं कि जब किसी की सवाल उम्री से अगर दूसरे लोगों पर असर पड़ रहा है तो क्या जी हाँ मैं आपको देता हूँ। तो सवाल को तो अगर इससे दूसरे लोग तो अगर हम अच्छा सवाल जवाब के दौरान एक गुजारिश मेरी है कि हम लोग जब सवाल कर रहे हैं ना तो वाज़ वक्त सवाल समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लंबा सवाल होता है, तो अगर हम मुख्तसर रखें टू द पॉइंट तो सवाल समझ में आ जाते हैं, वरना हम ये भूल जाते हैं कि असल में पूछना क्या चाह रहे थे। और दूसरी बात ये कि जब सवाल जवाब के दौरान अगर हम गुफ्तगू आपस में ना करें तो उसमें फ़ायदा ये होगा कि हम लोग ये समझ सकेंगे कि असल में डॉक्टर साहब बता क्या रहे हैं। हम प्रोग्राम के बाद इंशाल्लाह उसको तमाम गुफ्तगू करेंगे बहुत खुल के। तो जो सवाल था उसको अगर थोड़ा समेटना शायद वही सवाल दो तीन जगह से आया, तो ये कहना चाह रहे हैं कि जब कोई सवाने उम्री लिखता है उसमें दूसरों का जिक्र आ जाता है, तो और दूसरों का जिक्र इस तरह आता है कि आप खुद मुतनाज़ बने या ना बने वो एक अलग बात है, दूसरा आदमी मुतनाज़ बन रहा है, तो क्या इसका ताल्लुक सवाने उम्री की अखलाकियात से है या नहीं है? नंबर 1 लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए। नंबर 2 और अगर लिख दिया है तो और उसी पर असर पड़ा है तो क्या आपका की कोई इसके बाद की जिम्मेदारी है? ये समझ नहीं आती कि मैं सवाल उम्र लिखने वालों को डिफेंड करूं या डिफेंड करूं क्या? नहीं, हम ना डिफेंड करने, आप बिल्कुल वो वाली बात बताइए जो हम लोग सुनना चाह रहे हैं, मतलब कि किसी की जिंदगी अगर आपकी जाती नहीं, आपकी जाती राय क्या है? मतलब मैं तो 365 सवाल उम्र के बारे में राय दे चुका हूँ। अब ये कि मुझे इजाजत दी तो मैं राय दी है वो अगर आपने पढ़ी है कोई किसी खास सवाल का जिक्र करें तो मैं उसके जवाब बारे में पढ़ देता हूँ कि मैंने ये लिखा है।
میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو چونکہ ڈاکٹر صاحب نے اصل میں یہ جو سوال ہو رہا ہے اس کا جواب میرا خیال ہے کہ شروع میں دے دے گا. وہ اس طرح کہ ہم لوگ اپنے اپنے خیالات ہو سکتے ہیں کہ آپ کسی چیز کے حق میں ہیں کہ نہیں ہیں. کوئی چیز چل رہی ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ بھائی کیوں چھاپی, آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کیوں نہ چھاپے. تو ڈاکٹر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جو شخص لکھ رہا ہے اس کو پورا حق لکھنے کا. اچھا لگ رہا ہے آپ کو یا برا لگ رہا ہے, صحیح لگ رہا ہے برا لگ رہا ہے, اس کو لکھنا تو اس کو لکھ دیا. آپ کو غالباً تو بہرحال یہ کہ اگر کسی کو نقصان پہنچ رہا ہے تو وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں میرا قلم میری مرضی. میرا قلم. اچھا میں ایک وہ انہوں نے شروع میں ہاتھ اٹھایا تھا, وہ دیکھیے وہ ابھی میرے سوالات بالکل شروع میں تھے لیکن میں آپ کو دیتے نیچے چلے جا رہا ہوں. میں اس سے آپ کو دینے سے پہلے ایک سوال میں تھوڑا سا کر لوں. کوئی نیا نہیں ہے, کچھ اسی ان سوالات کا حصہ ہے کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ سوانح عمری اگر خود دانش نہیں ہے, کوئی اور لکھ رہا ہے, تو ہم اس پر کتنا بھروسہ کر سکتے ہیں؟ آپ کی مرضی ہے, کریں نہ کریں. اگر آپ پیرانوائڈ پرسنالٹی ہیں تو بالکل نہ کریں. ہاں یہ تو آپ کی پرسنالٹی پر ڈیپینڈ پڑھنے والے پہ منحصر ہے. لکھنے والے کی اتھارٹیسٹی بھی ہے. اب یہ لکھنے والا تو لکھ چکا, اب اس کا اثر پڑھنے والے پہ کیا ہوتا ہے, پڑھنے والے پہ میرا میں تو ایک تنقید نگار کی حیثیت سے جو میرا اثر تھا وہ میں نے بیان کر دیا. یہ ایک آدمی کا ہے نا. جی بہت شکریہ. آخر کار مائک حاصل کرنے میں کامیاب. میرا شکریہ. ڈاکٹر صاحب خواجہ شفیع دہلوی نے کہا تھا کہ ادب میں اخلاقیات ڈھونڈنا شراب میں نمک گھولنے کے برابر ہے. بالکل صحیح. اس کے بعد پہلی جو انہوں نے سوال اٹھایا تو اسی سے ایک میرے ذہن میں بات آ گئی کہ مشتاق احمد یوسفی نے اپنے دوستوں کے بارے میں پورا 1000 صفحے کا سوانح عمری ان کی لکھی تھی, جس پہ ان کے دوست نے اعتراض کیا کہ مجھے اپنی فیملی کی طرف سے پریشر ہے کہ اگر یہ ساری باتیں نہ چھپیں تو بہتر ہے, جس کی وجہ سے انہوں نے وہ شیلف پہ رکھ دی اور نہیں چھپی. تو جب مشتاق یوسفی جیسا سکا ادیب ایک چیز کو سائڈ پہ رکھنے پہ مجبور ہو جائے تو وہاں اخلاقیات کا کیا معیار ہے؟ یہ تو صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ وہ چھپ گئی ہے. نہیں, جو انہوں نے اگر آپ آب گم میں انہوں نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ میں نے یہ کتاب جو ہے وہ نہیں چھاپی اپنے دوستوں کی, اور منظور الہی شیخ چھاپی ہے, ان کے وہ بھی بہت قریبی دوست تھے. چنیوٹ کے جو ان کے دوست تھے ان کے بارے میں ان کے پورا جو احوال تھا وہ انہوں نے نہیں چھاپا تھا کہ میرے دوستوں کو جو ہے وہ اعتراض ہے. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ محمد حسین آزاد کی لکھی ہوئی آب حیات سوانح عمری کی کس کیٹیگری میں آتی ہے؟ آب حیات تو سوانح عمری نہیں ہے, وہ تو تاریخ کی کتاب ہے. اس میں مختلف شعراء کے حالات انہوں نے بیان کیے ہیں, اس لیے یہ کہنا کہ آب حیات سوانح عمری ہے وہ تو نہیں. آپ نے غالباً غور نہیں فرمایا اس پہلو پہ کہ آب حیات کو ہم سوانح عمری کے طور پہ ڈسکس نہیں کر سکتے. تاریخ کی کتاب کے طور پہ ڈسکس کر سکتے ہیں, اور اس کی بہت سی حیثیت ہے. بعض اسے مسترد مانتے ہیں, بعض اسے غیر مسترد قرار دیتے ہیں, کیونکہ بہت سی باتیں ایسی آ گئی ہیں خاص طور پہ غالب کو اگنور کر کے اور ذوق کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنے پہ بہت سے اعتراضات ہوئے ہیں. بہرحال سفر نصیب کو آپ کس طرح دیکھیں جی, مختار مسعود کی سفر نصیب اسے آپ کس طرح دیکھیں گے؟ سفر نصیب بہت اچھی کتاب ہے, اچھا سفر نامہ ہے. نہیں لیکن اس میں دیکھیے کہ ان کی جو ذات کے ایکسپیرینسز ہیں, اور میں نے جو پہلے بات کی تھی کہ کہ یہ سوال بڑا اہم ہے کہ ہم کسی کی آٹو بایوگرافی کو کیوں پڑھیں.
जितनी देर तक उसके अंदर एक रिफ्लेक्टिव कंटेंट नहीं है मैं उससे ज़्यादा मुतासिर नहीं हूँ। तो मुख्तार मसूद साहब की किताब वो है कि जिसके अंदर एक रिफ्लेक्शन आपको हर फिक्रे में, हर पैराग्राफ में नजर आती है। तो आप उसे आपका उसके बारे में क्या ख्याल है? सफर नसीब के बारे में, सफर नसीब तो वो उनकी आवाज़ दोस्त शायद ज़्यादा बेहतर उनकी नहीं, सफर नसीब इन्हीं की है, मुख्तार मसूद के, लेकिन ईरान का सफर वो लोहे अय्याम है सर, लोहे अय्याम ईरान वाला जो है लोहे अय्याम है। सफ़र नसीब उनके दो मुख्तलिफ सफ़र और शख्सियत निगारी है उसमें दो, एक उनके दोस्त हैं उसके बारे में सवाल है या तो नहीं तो सफर नसीब के बारे में तो मैं तो समझता हूँ जो पढ़ने के लायक किताब है। एक और सवाल है कि जैसे एक रशीद हसन खान साहब ने कहा कि जो भी कोई शख्स अपने बारे में लिखता है तो सबसे ज़्यादा झूठ वो अपने ख़ानदान के बारे में, अपने पैसे के बारे में बोलता है। उन्होंने कहा कि जब किसी के बारे में आप, तो एक तो ये बात, फिर आप जब सवानी उम्र लिखेंगे तो उसमें जब आपने खुद देख तो कर ही दिया इसका, लेकिन साथ में उन्होंने एक बात ये कही कि जब तहकीक करते हैं किसी के बारे में, जो अगर शख्सियत बड़ी होती है तो उसकी ज़िंदगी में तहकीक करने में मसाइल होते हैं, तो बहुत गुबार होता है, तो उसके बनने के बाद कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो गुबार बैठ जाए ताकि हक़ाइक़ की बात हो सके। अब ये बात उन्होंने तहकीक के लिए की। जब किसी के ऊपर तहकीक पर इतना शक होगा उसकी ज़िंदगी में, तो उसकी ज़िंदगी में उसके बारे में जो लिखा जाए वो खुद लिखे, वो कितना मुस्तनद होगा। इंसान के अपने हालात जो हैं वो भी दरअसल तारीख होते हैं। जब आप अपने हालात बयान कर रहे हैं, अपने माँ बाप के हालात बयान कर रहे हैं, अपने ख़ानदान के हालात बयान कर रहे हैं, तो गोया आप एक पूरे दौर को सामने ला रहे हैं कुछ। उसमें अगर आप दयानतदारी से काम नहीं लेंगे तो दूसरे जो उस दौर को जानने वाले हैं, उसी दौर में जिंदा हैं, उस दौर के हालात से वाकिफ हैं, उनको फ़ौरन पता चल जाएगा कि आप कहाँ तसामो कर रहे हैं और कहाँ तगाफुल से काम ले रहे हैं। ये सिलसिला तो चलता है। तो हर आदमी की तारीख अपनी तारीख नहीं होती, अपने दौर की तारीख होती। तो ये बुनियादी नुक्ता अगर ज़हन में रहे तो सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाती। अच्छा, और कोई सवाल? अच्छा, एक सवाल ये कि जब खुद नवेश नहीं हो गया, सवानी उम्र लिखी है किसी और की, तो उसके क्या उसको तहकीक, उसके साथ तहकीक लाजमी है अगर उसको सवानी उम्र कहेंगे, या उसको हम बगैर तहकीक के भी लिखा जा सकते हैं? तहकीक देखें, हर आदमी जो अपने बारे में लिख रहा है, अगर मसलन आप मुझे जानते हैं कि मैं कौन हूँ और मैं अपने बारे में जो लिख रहा हूँ वो आप पढ़ने के बाद महसूस होता है कि ये तो कोई और आदमी है जो बात कर रहा है, ये अपनी बात तो बयान ही नहीं कर रहा। तो इसलिए पढ़ने वाला जो है, जो उस दौर को जानता है, जो उस दौर में जिंदा है, वो उस दौर की तारीख को समझता है। इन बातों का लिखने वाले के ज़हन में मौजूद रहना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसकी बात पाया क्या कहते हैं, सकाहत को नहीं पहुँचे। जो नुकसान जो हुए हैं, एतराज़ात होते हैं खुद नविश्तों पे या सवाने उम्रियों पे, वो यही होते हैं कि हालात उन्होंने ऐसे बयान किए हैं या उन हालात से उन्होंने ऐसा नतीजा निकालने की कोशिश की है जो नतीजा नहीं निकलता। जी इसी की कंटिन्यूशन में मैं ये बात करना चाहती हूँ कि अगर ऐसे सवाल होंगे जो आज से 200-400 साल या 150 साल पहले लिखी गई है, तो अब पढ़ने वाला जो है
वो इस स्टैंडर्ड से तो उसको नहीं नाप सकता, क्योंकि वो नहीं जानता और लोग भी मर चुके हैं। तो क्या आप इस बारे में इस सिलसिले में ये बात मानेंगे कि असल में सवाने उम्री के लिए सच्चा झूठा या ये सब कुछ होना एक फ्लोई मसला है? असली बात ये है कि सवाने उम्री है क्या एक इंसान की कहानी है, वो हो सकता है 1000 साल पहले लिखी गई हो, लेकिन उसके अंदर उसके दौर के अगर उससे कनेक्शन आ गया है या कुछ और इस तरह की सच्चाइयाँ मौजूद हैं, मसलन बुद्ध के ज़माने का एक आदमी है और वो उस चेंज को अपनी ज़िंदगी में बयान कर रहा है कि कपिल वस्तु में क्या हुआ, हमें कोई बंदा नहीं मिलेगा तो तस्दीक करने वाला, लेकिन फिर भी वो सवाने की मेयार पे पूरी उतर सकती है अगर उसके अंदर सोशियो कल्चरल पैटर्न भी मौजूद हैं और एक शख्स का ज़ाती तजुर्बा भी। क्या ये दुरुस्त बात है? ज़ाती तजुर्बा ज़्यादा अहम है, वो तो मौजूद रहना चाहिए। तो वो सोशियो कल्चरल हवाले से ही आएगा, और तो कोई नहीं। तो वो अगर मौजूद है तो इसका मतलब है कि वो सही सवाने उम्री है। इस बात से कतई नजर कि उसकी खोज में बंदा लग जाए कि क्या सच है क्या झूठ है, क्योंकि ये खोज जो है वो सिर्फ एक हद तक हो सकती है, ज्यादा ठीक कह रही है। रीडर को क्या डिटेक्टिव होना चाहिए? इसमें तो गुंजाइश नहीं है ना, वो डिटेक्टिव हो गया कि अब जाके पहले वो ये खोज करेगा कि वो 150 साल पहले जाएगा। ये जो अभी नुज़र साहिबा ने सब बात की उसी से रिलेटेड एक वो के तारीख़ के हवाले से इब्न खुल्दून ने अपने मुकदमे पे भी खासा डिटेल से कुछ रूल्स दिए हैं जिसमें आप हिस्ट्री को मतलब वेरीफाई कर सकते हैं, तो हम उसको भी सवाने में इस्तेमाल कर सकते हैं तारीख़ी हवालों को वेरीफाई करने के लिए। क्या ख्याल है आपका? इब्न खुल्दून को तो बहरहाल किया जा सकता है, मतलब उन्होंने तो उन्होंने किया वो तो उसको जवाब ही इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल, और हवाला दिया जाता है उनका। अच्छा, एक सवाल है आसिम की तरफ से कि कायद-ए-आज़म पर जो किताबें लिखी गई हैं उनकी सवानी उम्री कई लिखी गई हैं, उनके बारे में बहुत कुछ लिखा गया, तो आप क्या ऐसी किताबें जिसको आप कह सकें कि ये सबसे ज़्यादा ईमानदारी से लिखी गई है? देखें, मैंने कायद-ए-आज़म की सिर्फ एक सवाने उम्री पढ़ी है, इसलिए मैं मुआवजा नहीं कर सकता कि कौन सी सवाने उम्री उनमें ज़्यादा तफसील से लिखी गई है और कौन से तफसील से नहीं लिखी। ये सारे रिसर्च के मौज़ूआत है, मेरा ख्याल, मैंने कहा रिसर्च के मौज़ूआत नहीं है। सवाने उम्री लिखने वाला तो अपनी बात कह के अपनी कहानी सुना के अलग हो जाता है। किसी की कहानी लिखना जी और चीज़ है, हाँ, अपनी कहानी लिखना बिल्कुल, ये अपना और गैर का फर्क है। जब तक किसी वाला अपने असर से तो जुड़ के मेरा नहीं जो लिख रहा तो उसकी राइटिंग सुन के जो मुझे अंदाजा हुआ है बात हो भाई बताना चाहता हूँ कि क्या सवाने उम्री में हमें दियानतदारी ढूंढने की ज़रूरत है, या हम उसे ये कहें कि ये एक पर्सपेक्टिव है। तो वो पर्सपेक्टिव लिखने वाले का पर्सपेक्टिव है, जिस तरह तारीख की किताबें हैं एक पर्सपेक्टिव से लिखी गई हैं। मैं और आप बैठ के डिबेट कर सकते हैं कि हम उससे एग्री करते हैं कि नहीं, लेकिन दियानतदारी की जो बात है क्या आपने की है, ये तो पर्सपेक्टिव का इशू है। मेरे पर्सपेक्टिव से हो सकता है कि मैंने उसको दियानतदारी से लिखा हो, आपके पास जो मालूमात हैं सही या गलत आप उसकी बेस पे कहें कि ये सही है या गलत है, लेकिन आई डोंट थिंक दैट शुड बी अ क्राइटेरिया टू इवेलुएट कि वो सवाने जो है वो सही है या नहीं है, क्योंकि हम में से आप में से कोई भी ये फैसला नहीं कर बात पहले बार आप कुछ कहेंगे थोड़ा सा? मैं इस पे तो सवाल नहीं कर सकता, यानी आपका कमेंट था, मेरा ख्याल है आप शायद वही डॉक्टर साहब ने जो बात की उसी को नहीं, बात वाज़ेह है, कौन सी बयान करने वाली बात कौन सी है? आपने जो शुरू किया था बात मुझे की थी कि सवाने उम्री की जो बेसिस है परखने की वो ये है कि लिखने वाले ने कितनी दियानतदारी से अपने बारे में बात की है। मैं उसके ऊपर जा रहा हूँ, ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट। इसमें तो आपको क्या एतराज़ है? नहीं, मुझे उसमें ये है कि मैंने आपसे कहा कि ये लिखने वाले का पर्सपेक्टिव है, वो अपनी तरफ से हो सकता है उसने सही लिखा हो, आपका पर्सपेक्टिव है कि उसने गलत लिखा है। नहीं, मेरा पर्सपेक्टिव ये नहीं कि उसने गलत लिखा है। हालात जब आप
मसलन नुज़रत की बात सामने आ जाती है, अगर आप आज से 10 साल 100 साल पहले के किसी आदमी की लिखी हुई तारीख पढ़ते हैं तो उसने सिर्फ तारीख नहीं लिखी, उस ज़माने की तारीख और लोगों ने भी लिखी है, वो पर्सपेक्टिव तो सारा सामने आएगा ना जब आप किसी उसका। जी सर, मेरा कमेंट आपका इस पे कि उसने अपने बारे में जो लिखा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आपने ये कहा कि अगर उसने अपने बारे में दियानतदारी से लिखा है तो फिर वो ऑथेंटिक है, लेकिन अगर उसने मैं ये कह रहा हूँ कि हमें ये कैसे पता कि जो वो अपने बारे में लिख रहा है वो दियानतदारी से लिख रहा है कि नहीं। आप तो हालात को देख के इस बात का फैसला कर रहे हैं, लेकिन लिखने वाला जो लिख रहा है वो तो अपने हिसाब से लिख रहा है, जो उसने एक्सपीरियंस किया। ये मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि उसने हमें कैसे पता चलेगा कि वो दियानतदारी थी या नहीं थी? अपने बारे में उसके करवाई साहब ने ये भी कहा था कि अगर वो सिर्फ अपनी एक ही अपनी तारीफें ही करता जा रहा है, मुबालगे से काम लेता जा रहा है, तो कि हर शख्स को ये चाहिए कि वो नेगेटिव भी जो है वो भी लिखे, पॉजिटिव भी जो है वो भी लिखे, ये नहीं कि सिर्फ वो पॉजिटिव चीज़ें वो लिखे। तो मेरा ख्याल है कि ये जो सवाल हो रहा है कि सच है या झूठ है, ये शायद वो जो तहरीर है वो खुद तय कर लेगी, क्योंकि जब आप उसको एक तरफा देखेंगे तो आपके जहन में ये सवाल आएगा कि भाई ये एक ही तरह की बात है, ये बंदा है कि फरिश्ता था। दुश्मन भी करता है। आपने जो बात की है कि बंदा है कि फरिश्ता है, शेर साफ पढ़ना जरूरी है, फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज्यादा। वालिद साहब, चूँकि बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी ये एक माइक्रो हिस्ट्री है इन ए वे, तो हम लोगों का जो इधर उधर से जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हिस्ट्री वाक़याती रंग में और हिस्टोरियोग्राफी के बहुत वाक़याती रंग को अगर छोड़ दिया जाए तो हिस्टोरियोग्राफी के एस्टैब्लिश प्रिंसिपल्स जो हैं वो बहुत से लिटरेचर में मौजूद हैं। तो आया हिस्ट्री या हिस्टोरियोग्राफी के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको ऑटोबायोग्राफी पे इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि है तो ये भी तारीख ही, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखें, हालात जिन हालात में एक आदमी जीता है, जिंदगी करता है, उन्हीं हालात में उसके साथ एक पूरा माशरा मौजूद, वो अकेला नहीं है, उसके इर्द गिर्द और लोग भी मौजूद हैं। तो इसलिए किसी एक आदमी के जो हालात हैं वो सिर्फ एक आदमी के हालात नहीं रहते, इर्द गिर्द के हालात उस पर असरअंदाज हो रहे हैं। ये सारा कुछ मिल के उसके ज़हन की तरह वो करता है, तरबियत करता है। तो एक आदमी की बात एक आदमी की बात नहीं रहती, पूरे माशरे की बात, पूरे माहौल की बात चलती है। अच्छा, इसमें जैसे अभी यहाँ पे कई सवाल ऐसे हुए जिसमें सिकंदर का जो सवाल था वो भी, और जैसे आपने कहा ये जो बात हो रही है, एक सवाल में ख्याल है कई दफ़ा जैसे अभी वो मुख्तलिफ तरीक़ों से हमने शायद वही एक ही सवाल घूमते हमने बुझाया कि हम कि अगर एक मौजू पे बात कर रहे हैं मैं तो वही रहेगा। जी, मैं सिर्फ कहना चाह रहा हूँ कि मेरे ख्याल है सब लोग डॉक्टर साहब उसे साइंटिफिक अंदाज़े बयान करते थे। नहीं, उनकी बात नहीं कर रहा मैं, डॉक्टर साहब का सवाल हो गया, मैं उससे पहले वाली जो बात हुई, तो मेरा ख्याल है कि एक सवाल ये कि हम कैसे तय करें कि वो सही है, बार बार हम लोग ये बात करें, तो मेरा ख्याल है शायद आपने इसका जवाब शुरू में दिया था। बताइए कि अगर कि अब सही समझाऊँ, हम ये जब ये कह रहे हैं कि कोई आदमी लिख रहा है हमें कैसे पता सही है, अगर हमें पता है कि गलत है तो क्या आप हम उसको साबित करेंगे गलत है? ये बात जो हो रही है बार बार, मेरा ख्याल है इसमें जहाँ तक मैं समझाऊँ ये है कि जिसको लिखना था उसने लिख दिया, जो दूसरे लोग हैं जो उसको जानते हैं, उसके हालात को जानते हैं, वो बता सकते हैं क्या सही क्या गलत है। अब अगर कोई चाहता है कि ये तय करे कि ये सही है गलत है, तो वो कहती रह जाएगी उसके लिए। यही तो होता रहा है, तो ये मतलब ये तो मुसलसल अमल है, उसके जवाब दिए गए हैं। अच्छा, आप चूँकि आपकी कोई और सवाल इस हवाले से? एक सवाल। अच्छा जी, ऑटोबायोग्राफी अदबी पहलू से
उसको किस तरह देखेंगे कि उसका कंटेंट कितना अहम है या उसमें उसलूब की क्या अहमियत है, उसका तवाज़ुन कैसे बहस कारी के इर्रेस्पेक्टिव के लिखने वाले ने सही लिखा या झूठ लिखा, मुमकिन है बहुत अच्छा लिखा हो, ये भी तो हो सकता है। तो आप इसमें तवाज़ुन कैसे पाए करेंगे कंटेंट में? सवाल ये है कि जब हम सवानी उम्री की बात करें तो उसमें हम कंटेंट और उसके उसलूब, उसमें तवाज़ुन कैसे देखेंगे? हम उसको उसलूब के हवाले से देखें या उम्री को जांचते हुए? जी, उसको कैसे जांचेंगे? उसके उसलूब के हवाले से, कंटेंट के हवाले से? नहीं, दोनों चीज़ें अहम हैं। अगर देखें, जब आप अपने बारे में लिखते हैं तो मेरा अर्ज करने का मकसद ये है कि जब आप अपने बारे में लिखते हैं तो आप अपने उसलूब में लिखते हैं, आपकी ज़ात उसमें शामिल हो जाती है, आप अपने ज़ात के हवाले से उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, जैसे मेरे दोस्त से जिक्र किया था, उस ज़माने के हालात दूसरों ने भी लिखे हैं, इसलिए हालात का पता चल जाता है कि कौन कहाँ रास्ते से भटक गया है या उसने भटकने की उसका अपनी बात को ऐसे अंदाज में मनवाने की कोशिश की है जो उसके ज़माने के हालात उसकी तस्दीक नहीं करते। तो ये सिलसिला तो लिखने वाले पर मुनहसर है। फिर असल बात आ जाती है, वो है लिखने वाले का उसलूब, जो सबसे अहम खुद नवीस सवाने उम्री में लिखने वाले का उसलूब बहुत अहमियत रखता है। अगर वो ऐसा नहीं है जो आपको मुतासर करे तो आप नहीं पढ़ेंगे, आपको कोई दिलचस्पी नहीं है उसके कि ज़ैद बकर कहाँ पैदा हुआ, कहाँ जिया, कहाँ मरा, क्या करता रहा। आपका उसलूब आपको साथ चलता है तो पढ़ने वाला आपके साथ चलता है। अगर आपका उसलूब साथ नहीं दे रहा, आपकी ज़ुबान में, आपके अंदाज़े बयान में, आपके रवानी में, उसमें रवानी नहीं है आपके अंदाज़े बयान में, तो आपकी बात दरमियान में रह जाती है। इसलिए उसलूब सबसे अहम है और उसलूब का ख्याल रखना चाहिए। और वही सवाने उम्रिया ज़्यादा पढ़ी गई हैं जिनका उसलूब ऐसा था कि लोग उनको पढ़ने पे मजबूर, वरना शहाबनामे की बात करें तो उसका उसलूब अच्छा, शहाबनामे का उसलूब अच्छा है। हाँ, उसलूब अच्छा है। जो भी उन्होंने लिखा है लोग उस पे उनको पढ़ना पसंद है। वो तो पढ़ने वाले पे मुनहसर है ना, तो उनको कहाँ तक सही समझता है या कैसे समझ सकता है। वो दूसरा सवाल आ जाता है, किस पहला ये कि रीडेबल भी है। दो मुख्तलिफ सवाल है ना, लेकिन असल बुनियाद जो है वो उसलूब है। अगर लिखने वाले का उसलूब ऐसा है तो वो कारी को साथ ये चलता है, अगर उसलूब में ऐसी कोई खूबी नहीं है तो पढ़ने वाला उसके साथ नहीं चल सकता। वैसे डॉक्टर साहब, जिन लोगों को खुद नविश जो भी लिखता है उसको क्या खुद नुमाई का शौक है ही तो वो लिखेगा, नहीं तो वो कुछ और भी लिख सकता है। नहीं, खुद नुमाई का शौक नहीं होता। खुद नुमाई तो एक खास, ये नफ्सियात हम ज़्यादा बता सकते हैं, एक खास कैफियत है जो अपने आप को वो उभारने वाली है, वरना लिखने वाले में खुद नुमाई नहीं लिखना तो आप नॉवल लिख लें, आप हिस्ट्री की कोई किताब लिख लें, आप कुछ और लिख लें, लेकिन जो भी ये लिखता है अपनी ज़ात के बारे में, इसे तो आप इस तरह भी बढ़ा सकती हैं। जो अपनी ज़ात के बारे में लिखता है वो तो ज़ातियात वो तो रहता है ना। इनका मकसद ये। एक सवाल इनका सवाल वो पूछ रहे हैं कि आजकल जैसे आजकल बहुत कहानियाँ लिखी जा रही हैं और ज़्यादातर कारोबारी हवाले होता है, यानी तो ये होता है कि किताब लिखेगी, खिलाड़ी हैं, सियासतदान हैं, अदाकार हैं, सब लिख रहे हैं। तो हम ये कैसे जो सवानी उम्री है, जो बदनविश्त है, उसके अदब के मेयार को उतरने, उसको अदब यानी अदबी उसको अदब में शामिल करने के लिए किस मेयार पर, उसके मेयार क्या होंगे? नहीं, हर सवाने उम्री को तो अदब में शामिल नहीं किया था, जैसे हर किताब तो अदब नहीं होते। किताबें तो बहुत हैं लेकिन अदब कम है ना, इसलिए खुद नवीस सवाने उम्रियों में भी वही किताबें हैं, वही सवाने उम्रियाँ अदब की ज़ुमरे में आती हैं जिनमें अदबी खूबियाँ होती हैं।
वरना लिखने वाले तो जैसे आप बता रहे हैं खिलाड़ी भी लिख रहे हैं और ताजिर भी लिख रहे हैं, बेशुमार किस्म की सवालियाँ आ रही हैं, आती रहें, लिखने तो चाहिए, इसलिए कि हालात लिखना बहुत ये भी जैसे रुबीना ने एक बात की, एक सवाल मेरे पास भी था इस तरह का, आपने उसका आधा जवाब तो वैसे दे ही दिया कि आपने कहा कि वो हमारे नफ्सियात जो हैं वो बताएंगे, लेकिन मेरे ज़हन में ये बात थी कि जो लोग सवाने उम्री लिखते हैं और उसमें अपनी बुराइयां बता रहे होते हैं, वो बाज़ औक़ात अपने आप को एंटी हीरो के तौर पे भी तो पेश कर रहे होते हैं। जो खूबियां बता रहे हैं वो एंटी हीरो नहीं होते, जो खामियां बता रहे हैं ये तो तवाज़ुन रहना चाहिए ना खूबियों और खामियों में, इंसान की शख्सियत मुतवाज़िन शख्सियत जी पाक बीती जी वो किस कैटेगरी में आएगी? जी पाक बीती किस कैटेगरी में आएगी? साकी फारूकी की पाक बीती किस कैटेगरी में? पढ़ी आपने? जी अच्छा, दोनों हिस्से पढ़ लिए कि एक ही पढ़ा है? एक पढ़ा। हाँ, दोनों पढ़े। फिर दूसरा हिस्सा उसके वफात के बाद छपा है, वो ज्यादा पढ़ने के लायक है। जापान में जिस तरह से बायोग्राफी लिखी जा रही है या लिखी गई है, तो उसका कोई कंपैरिजन आप कर सकते हैं उर्दू में लिखी गई और जापान में? नहीं, ऐसे तो मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैंने काम जो शुरू किया था अदबी जापान में रह के, वो कावाबाता की नोबेल प्राइज नोबेल बुक पे था, बर्फ का शहर, द स्नो कंट्री। कावाबाता यासुनारी जापान के ऐसे अदीब थे जिनको पहले अदीब थे जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था। छोटी सी किताब है और एक ख़ास हिस्सा है जापान का जहाँ ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, उसको उन्होंने स्नो कंट्री का नाम देके उस तहजीब को उभारने की कोशिश की है। तो पहली किताब वो थी, उसी के मैंने सबसे पहले तर्जुमा किया। वो आज तक वो किताब वहाँ टेक्स्ट बुक के तौर पे पढ़ाई जा रही है, इसलिए कि उनके माशरे की किताब है, उनको समझ आ जाती है उर्दू पढ़ने वालों को। तो उर्दू की टेक्स्ट बुक में वो स्नो बुक वहाँ स्नो कंट्री वहाँ शामिल है। बहरहाल ये तो सिलसिला चलता ही रहता है। लेकिन कावाबाता के बाद मैंने 2-3 और नोबेल प्राइज वाले थे उनके, जिनकी नज़्मों का तर्जुमा करने की कोशिश की है। तो तर्जुमे तो किए मैंने जापान के, लेकिन ज़्यादा मशहूर वही कावाबाता वाला ही हुआ है, स्नो कंट्री वाला। सर आपने नोबेल के हवाले से बात की, तो 2 सवाल मेरे हैं कि आप उसमें गालिबन किसी कमेटी में शामिल रहे? आप भी हूँ। अभी हैं, अच्छा। तो फिर मतलब अगर आप अभी हैं तो फिर पूछ लेता हूँ आपसे सवाल कि क्या नोबेल प्राइज के बारे में ये ख्याल है कि ये सियासी ज़्यादा होता है? ऐसी बात तो नहीं है। वो सियासी तो लोग इसलिए कह देते हैं ना कि जब एक किताब को जिसको नोबेल प्राइज दिया जाता है एक आदमी नहीं पढ़ता, 25 आदमियों को तो मैं जानता हूँ जो उसके मेंबर हैं, और 25 आदमियों की राय आती है, फिर उन राय को बैठ के फिर 5 आदमी फिर सुनते, फिर उन 5 के बाद फिर 3 करते, तो आखिर जाकर उसका एक फैसला होता है। गलत भी हो सकती है, तो ज़रूरी तो नहीं है कि आखिर इंसानों का फैसला है, आपको इख्तलाफ भी हो सकता है, आपको आप उसे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, आप उसे इत्तेफाक भी कर सकते हैं। तो ये नोबेल प्राइज का सिलसिला कुछ सियासी सिलसिला नहीं है, ये खास अदबी सिलसिला है, और अदब के नुक्ता नज़र से भी उस पर से ही इसको देखा जाना चाहिए। इसके बारे में ज़्यादा तरद्दुद नहीं करना चाहिए। जो डॉक्टर वज़ीर आगा, आपको मालूम नहीं कि आप इसका जवाब दे सकते हैं इसका, डॉक्टर वज़ीर आगा को जब नामजद किया जा रहा था और उस बारे में एक मुनाज़रा खड़ा हुआ था, उस हवाले से आप कुछ शेयर करेंगे? जी देखिए, नामजद करने वाले मैंने बताया 35 आदमी होते हैं, तो
उनमें से बाज़ लोगों को वो बुला लेते हैं स्वीडन में। उनमें से ये वज़ीर आग़ा थे जिनको बुलाया गया, और इनको बुलाने की दो वजूहात थी। एक वजह तो ये थी कि इनके खिलाफ एक पूरा हल्का काम कर रहा था, दो बड़े हल्के, कासमी साहब का और इनका, वो हालांकि खामखा दोनों में इख्तलाफ तो कोई भी नहीं था, अदबी हल्के थे, लेकिन वो एक दूसरे के खिलाफ इतनी क्या कहते हैं, इल्ज़ाम तराशी हो रही थी कि जब ये वज़ीर आग़ा वहाँ आए हैं तो मैंने इनको कहा कि आप मेरे यहाँ ठहरें। तो जो प्रेसिडेंट थे हमारे, पीटर केरमैन उनका नाम था, तो केरमैन सब कहने लगे कि देखो वज़ीर आग़ा को तुम हमारे पास रहने दो ताकि हम जांच सकें कि इस आदमी के अंदर है क्या। मैंने कहा जांचे तो आप उसके मजमून से, जो वो मजमून आपके उस पर मीटिंग में पढ़ेंगे, वहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि उसके अंदर कोई है या कुछ चीज़ है भी कि नहीं है, या खामखा प्रोपेगेंडा ही चल रहा। तो जब इन्होंने मजमून पढ़ा है तो मैं उस मीटिंग में मौजूद था। पीटर केरमैन का ख्याल था कि पिछले 10 सालों में इस तरह अच्छा मजमून मैंने नहीं सुना। तो ये तो उनके अपने लिखने का अंदाज था, लेकिन नोबेल प्राइज जो है वो तो ज़ाहिर है किसी और को मिला। मजमून किस टॉपिक पे था? मजमून छपा हुआ है, उनके जाती छाप दिया था आगा साहब ने, अब इस वक्त ज़हन में नहीं आ रहा उसका उन्वान। 30-35 सफ़े का मजमून था। तो वो जो उसके बारे में तनाज़ा है जो उनके खिलाफ मुहिम चली है, उसकी वजह से उनको नहीं दिया गया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, मुहिम का से कोई ताल्लुक नहीं था। मुहिम तो इसलिए मैंने बताया कि मुहिम तो किसी के हक में भी चल रही थी, किसी के खिलाफ चल रही थी, तो मुहिम का तो उसमें कोई असर नहीं होता। 35 आदमियों की राय जो है, और वो 35 मुख्तलिफ मुल्कों के लोग हैं, कोई अमेरिका का है, कोई कनाडा का है, कोई कहाँ का है, कोई कहाँ का है। उसमें पाकिस्तान के भी 2 आदमी हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, अब भी हैं। तो बहरहाल ये तो सिलसिला चलता रहता है। और शुक्रिया। और कोई सवाल? एक छोटा जी इरशाद। कि जिस तरह हम कहते हैं कि अपनी तारीफ करना, मुबालगा और आराई वगैरह ये नहीं होनी चाहिए इस्लामी उम्री में, लेकिन मेरा सवाल ये है कि अपने ऐब छुपाना क्या ये बुरी बात है इस रेफरेंस से? आप मुझसे पूछें। नहीं, मतलब जो आपका क्राइटेरिया आप अपने आप से पूछ लें ना। ये सवाल तो आज आदमी अपने आप से कर सकता है कि क्या अपने ऐप छुपाऊं को अच्छी बात है, छुपाऊं या ना छुपाऊं। ऐपों पे डिपेंड करता है। हाँ, ये तो अपने जात से सवाल होना जी बहुत शुक्रिया। और कोई साहब? बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। आप सब लोगों ने जो सवाल जवाब का सिलसिला में आप लोगों ने जो भी, आज मैं बार बार जब खड़ा हो जाता हूँ मुझे आसानी होती है इसलिए मुझे अच्छा लगता है, बेहतर लगता है। तो आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। जब आप बात करते हैं तो ये आपकी गुफ्तगू बहुत रंगीन है जी कहीं तो रंग आए जी। छोटी सी बात करनी थी, नेक्स्ट अगर कोई नशिस्त हो तो मौजू अगर उसका इंतखाब कर लिया जाए तो शायद मैं इसी तरफ दरअसल में जो हम लोगों का जो इरादा है, हाँ नहीं वो हमारा ये है कि जो नशिस्तें होंगी, हमारा जो 2-3 तरह की चीज़ें होंगी। एक तो ये कि हम ऐसे कोई प्रोग्राम होगा जैसे मुकालमा है, या ऐसी नशिस्त होगी जो किसी मौजू के हिसाब से करेंगे जिसमें हम सब लोग उसमें शामिल हो सकते हैं। उसमें हो सकता है कोई पैनल हो, मौजूआती भी हो सकता है, शख्सियाती भी हो सकता है। तो ये जो नशिस्तें हैं उसमें हमारा मकसद असल में ये है, और इसके मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, मुख्तलिफ फॉर्मेट हो सकते हैं। मकसद ये है कि हमारे साथ आस पास जो लोग मौजूद हैं जिनके पास बहुत इल्म है और हम लोग उनसे सीख सकते हैं
तो बस कोशिश है कि जहाँ लोगों को बुलाया जाए, उनके साथ बैठे, उनसे सवाल जवाब हो, उनसे मुकालमा हो, कभी वो मजमून पढ़ेंगे, कभी मजमून नहीं हो सकता, इससे मुकालमा मुज़ाकरा हो, तो वो इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें हम लोग करते रहेंगे। और अगर कभी हमारे पास जैसे आज का हमारा था वो सवाने अमली का, ये अच्छी बात है कि हम अगर मैं उसमें भी देता कि सवाने अमली पे ज़्यादा गुफ्तगू होगी तो वो शायद आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लगा। तो अगली दफ़ा हम कोशिश करेंगे कि मौजू के हवाले से अगर कुछ हम पहले से बता सकें तो ज़रूर बताएंगे। तो ये इंशाल्लाह ऐसा करते रहेंगे। और बहुत शुक्रिया। मैं आखिर में काजी साहब से नजर से कलाम ने कलाम सुनना है? हाँ, कलाम क्यों सुना है? और भी बहुत लोग हैं। असल में वो हमारा जो टाइमिंग है मुशायरे के हिसाब से वो बढ़ जाएगा वरना तो इसलिए हम लोगों ने इसका शेयर निश्चित उसमें चलो कोई ऐसे तकरीब तो हो जो बगैर मुशायरे के खत्म हो वैसे किसी ज़माने में जो हमारे जो नशिस्तें होती थी वो तो उसमें हर नशिस्त में मुशायरा नहीं हुआ करता था। चलो बस मैं समझ लिया वही उसी तरह की नशिस्त है। मैं अनवर काजी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अरबाब कलम की तरफ से पैगामियाँ कलमात अदा करें। मैं अपनी इस नई तंजीम जो यहाँ कनाडा में इस तरफ कनाडा के लिहाज से नहीं है, तो इसकी जानिब से आप तमाम शुरा का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, बिलखुसूस आपका परवेज़ नवाज़ी साहब का। और इंशाअल्लाह ताला अगली नशिस्तें होती रहेंगी जैसा कि फैसल ने बताया, और हम मज़मून का भी पहले से आपको बता देंगे। और ये नहीं है कि इस तंजीम के तहत हम मुशायरा नहीं करेंगे, मुशायरे भी हुआ करेंगे, लेकिन ये कि मुशायरे ही हुआ करेंगे ऐसा भी नहीं होगा। और एक बार फिर आप सबों का शुक्रिया, खासकर सिकंदर साहब आपका बहुत शुक्रिया इस हवाले से कि आपने जगह दी यहाँ पर बैठने के लिए, और इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।